السلام علیکم ناظرین، سیاست ٹی وی کے عالمی خبر نامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں محمد شوکت اور سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے صدارت انتخابات سے قبل کملا ہیرس کے ساتھ ایک اور مباحثے کے چیلنج کو کر دیا مسترد۔ امریکہ کی 3 ریاستوں میں قبل از وقت رائے دہی کا بھی آغاز۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے امریکہ کی قیادت میں چھٹی کواد چوٹی کانفرنس میں کی شرکت۔ آسٹریلیا، ہندوستان، جاپان اور امریکہ کا اتحاد انسانیت کی بقا کے لیے انتہائی اہم دیا قرار۔ ایران میں کوئلے کی کان میں دھماکہ، 51 کارکن ہلاک اور متعدد زخمی۔ غزہ میں اسرائیلی فوج کا پناہ گزین اسکول پر حملہ، بچوں سمیت 22 فلسطینی شہید۔ آج بھی اسرائیل نے کیے حملے، شہداء کی تعداد 42,000 سے بھی زیادہ۔ لبنان میں حزب اللہ اور اسرائیل کے درمیان جھڑپوں کا سلسلہ جاری، لبنان میں ہلاکتوں میں بے پناہ اضافہ۔ امریکی ریاست الاباما کے شہر برمنگھم میں فائرنگ کا واقعہ، 4 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی۔ اور سری لنکا میں 2022 کے بدترین معاشی بحران کے بعد پہلے صدارتی انتخابات کے لیے پولنگ مکمل، ووٹوں کی گنتی جاری۔ اور اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے صدارت انتخابات سے قبل نائب صدر کملا ہیرس کے ساتھ ایک اور مباحثے کے چیلنج کو مسترد کر دیا۔ واضح رہے کہ 11 ستمبر کو ڈونلڈ ٹرمپ اور کملا ہیرس کے درمیان پہلا صدارتی مباحثہ فلاڈیلفیا میں ہوا تھا۔ پیش ہے یہ خاص رپورٹ۔ سابق امریکی صدر ٹرمپ نے صدارتی انتخابات سے قبل نائب صدر کملا ہیرس کے ساتھ ایک اور مباحثے کے چیلنج کو مسترد کر دیا ہے۔ ڈیموکریٹک امیدوار کملا ہیرس کی انتخابی مہم نے کہا تھا کہ وہ 23 اکتوبر کو CNN پر ریپبلکن کے امیدوار کے ساتھ ایک اور صدارتی مباحثے کے لیے تیار ہے۔ کملا ہیرس کی انتخابی مہم کی سربراہ جین اومیلے ڈیلون نے ایک بیان میں کہا، نائب صدر کملا ہیرس نے 23 اکتوبر کو ہونے والے مباحثے کی دعوت قبول کر لی ہے، لیکن ٹرمپ کو اس صدارتی مباحثے کے لیے کوئی دشواری نہیں ہونی چاہیے۔ ٹرمپ اپنے پرانے موقف پر قائم ہے کہ 5 نومبر کو ہونے والے انتخابات سے قبل کوئی اور صدارتی مباحثے میں حصہ نہیں لیں گے۔ شمالی کیرولائنا میں ایک ریلی سے خطاب میں سابق صدر نے کہا، ایک اور صدارتی مباحثہ کرنے میں مسئلہ یہ ہے کہ اب بہت دیر ہو چکی ہے، ووٹنگ بھی شروع ہو گئی ہے۔ 11 ستمبر کو ٹرمپ اور کملا ہیرس کے درمیان پہلا صدارتی مباحثہ فلاڈیلفیا میں ہوا تھا، جو تقریباً 90 منٹ تک جاری رہا۔ نائب صدارتی امیدواروں ٹم والز اور جے ڈی وینس کے درمیان مباحثہ 1 اکتوبر کو ہوگا۔ مباحثے کے لیے شیڈول اور پلیٹ فارم کا انتخاب انتخابی مہم کی طرح تقریباً متنازع ہو گیا ہے۔ کملا ہیرس اور ٹرمپ کی انتخابی مہم کے درمیان کئی مرتبہ اس بات پر بحث ہوئی کہ کون سے ٹی وی نیٹ ورک، کون سے میزبان اور کس فارمیٹ میں ان کو بحث کرنی چاہیے۔ رواں ماہ کے آغاز میں ABC نیوز کے زیر اہتمام صدارتی مباحثے کے بعد سابق صدر ٹرمپ نے ٹی وی کے میزبانوں ڈیوڈ میور اور لینزے ڈیوس کو تنقید کا نشانہ بنایا تھا کہ مباحثے کے دوران ان کا رویہ متعصبانہ تھا۔ ٹرمپ نے صدر جو بائیڈن کے ساتھ جون میں مباحثہ کیا تھا۔ صدارتی مباحثے میں بائیڈن کی خراب کارکردگی نے ڈیموکریٹس کو پریشان کر دیا تھا اور اسٹریٹجسٹ کو یہ سوال کرنے پر مجبور کر دیا تھا کہ کیا ان کی پارٹی کو 81 برس کے صدر کو اپنے امیدوار کے طور پر تبدیل کرنے کا غیر معمولی قدم اٹھانا چاہیے۔ اور پھر بڑھتے دباؤ کے بعد صدر جو بائیڈن نے جولائی میں وائٹ ہاؤس کی دوڑ سے دستبرداری کا اعلان کر دیا تھا۔ بیورو رپورٹ، سیاست ٹی وی۔ اسی دوران امریکہ میں نومبر میں ہونے والے صدارتی انتخابات میں ووٹ ڈالنے کے لیے 3 ریاستوں میں قبل از وقت رائے دہی کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ مینیسوٹا، جنوبی ڈاکوٹا اور ورجینیا ریاستوں میں لوگوں نے بیلٹ باکسوں کا رخ کیا ہے۔ یہ صدارتی مقابلے ڈیموکریٹک امیدوار کملا ہیرس اور ریپبلکن امیدوار اور سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان ہو رہا ہے۔ تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ سروے کے مطابق کملا ہیرس کو ٹرمپ کے مقابلے میں جزوی طور پر برتری حاصل ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کشیدگی اور تنازعات سے گھرے دنیا کے لیے آسٹریلیا، ہندوستان، جاپان اور امریکہ کے 4 فریقی اتحاد کا مشترکہ جمہوری اقدار کی بنیاد پر ساتھ مل کر چلنا انسانیت کے لیے انتہائی اہم قرار دیا۔ ہند بحر الکاہل خطے میں
सर्वाइकल कैंसर का पता लगाने, रोकथाम और इलाज के लिए क्वाड कैंसर मून शॉट और क्वाड ममालिक के साहिली मुहाफिजों के दरमियान बाहमी ताउन को बेहतर बनाने के लिए क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वेशन के मिशन के क़याम समेत कई अहम ऐलानात किए गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, जापान के वज़ीर-ए-आज़म फोमियो किशिदा और ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर-ए-आज़म एंथोनी अल्बानेज़ ने अमरीकी सदर जोसेफ आर बाइडन की मेज़बानी में मुनक्किदा इस चोटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। कोविड पैंडेमिक के दौरान हमने इंडो पैसिफिक के लिए क्वाड वैक्सीन इनिशिएटिव लिया था और मुझे खुशी है कि क्वाड में हमने सर्वाइकल कैंसर जैसे चैलेंज का मिलकर सामना करने का निर्णय लिया है। इन कैंसर केयर कोलैबोरेशन इज एसेंशियल फॉर क्योर। कैंसर का बर्डन कम करने के लिए प्रिवेंशन, स्क्रीनिंग, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट की इंटीग्रेटेड अप्रोच जरूरी है। भारत में मास स्केल पर बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम चल रहा है। साथ ही भारत दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम चला रहा है और सबको एफोर्डेबल कॉस्ट पर दवाइयां उपलब्ध कराने के लिए स्पेशल सेंटर्स भी बनाए गए हैं। भारत ने सर्वाइकल कैंसर के लिए अपनी वैक्सीन भी बनाई है और एआई की मदद से नए ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल भी शुरू किए जा रहे हैं। एक्सेलेंसी, भारत अपना एक्सपीरियंस और एक्सपर्टाइज शेयर करने के लिए तैयार है। आज कैंसर केयर में काम करने वाले भारत के कई एक्सपर्ट्स इस इवेंट्स में हमारे साथ जुड़े हैं। भारत का विजन है वन अर्थ वन हेल्थ। इसी भावना से मैं क्वाड मून शॉट इनिशिएटिव के तहत $7.5 मिलियन के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जापान के वज़ीर-ए-आज़म फोमियो किशिदा और ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर-ए-आज़म एंथोनी अल्बानेज़ के हमराह अमरीकी सदर जो बाइडन की मेज़बानी में मुनक्किदा क्वाड चोटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। मोदी ने अपने बयान में क्वाड की 20वीं सालगिरह के मौके पर बाइडन को मुबारकबाद दी और कहा कि उनकी क़यादत में 2021 में क्वाड की पहली चोटी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया था और इतने कम वक्त में हमने हर सिमत में अपने बेमिसाल ताउन बढ़ाया है। सदर बाइडन ने ज़ाती तौर पर इसमें बहुत अहम किरदार अदा किया है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हमारी मुलाकात ऐसे वक्त में हो रही है जब दुनिया कशीदगी और तनाज़ात में घिरी हुई है। ऐसी सूरत हाल में क्वाड के लिए पूरी इंसानियत के वास्ते मुश्तरका जमहूरी इक़दार की बुनियाद पर एक साथ चलना बहुत अहम है। दिशा में अभूतपूर्व तरीके से बढ़ाया है। इसमें व्यक्तिगत रूप से आपकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। मैं क्वाड के लिए आपकी दृढ़ प्रतिबद्धता, आपके नेतृत्व और आपके योगदान के लिए आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं। फ्रेंड्स, हमारी बैठक ऐसे समय हो रही है जब विश्व तनावों और संघर्षों से घिरा हुआ है। ऐसे में साझा डेमोक्रेटिक वैल्यूज के आधार पर क्वाड का मिलकर साथ चलना पूरी मानवता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम किसी के खिलाफ नहीं हैं। हम सभी एक रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के सम्मान और सभी मसलों के शांतिपूर्ण ढंग से हल निकालने का समर्थन करते हैं। फ्री, ओपन, इंक्लूसिव और प्रॉस्परस इंडो पैसिफिक हमारी साझा प्राथमिकता और साझा प्रतिबद्धता है। हमने मिलकर हेल्थ,
health security, critical and emerging technologies, climate change, कैपेसिटी बिल्डिंग जैसे क्षेत्रों में कई सकारात्मक और समावेशी इनिशिएटिव लिए हैं। हमारा मैसेज साफ है, क्वाड इज हियर टू स्टे, टू असिस्ट, टू पार्टनर। अमेरिका ने करीबी दो तरफा ताल्लुकात को जहन में रखते हुए हिंदुस्तान से चोरी करके अमेरिका पहुंचे 297 कदीम नायाब नवादिरात और मुकम्मल बाक़ियात हिंदुस्तान को सौंपे हैं। अमेरिका ने यह कदम वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे के दरमियान उठाया है। मोदी के मौजूदा दौरे अमेरिका के मौके पर अमेरिकी फ़रीक ने हिंदुस्तान से चोरी या स्मगल शुदा 297 नवादिरात की वापसी में सहूलत फ्राहम की। उन्हें जल्द ही हिंदुस्तान वापस लाया जाएगा। ईरान में कोयले की कान में गैस धमाके से 51 कारकुन हलाक और मुतादी जख्मी हो गए। कोयले की कान में धमाके का वाक़या दारुल-हुकूमत तेहरान से 540 किलोमीटर दूर सूबे खरासान के ज़िले तबास में पेश आया। खबर के मुताबिक धमाका हफ्ते की रात 9 बजे कान के 2 ब्लॉक्स में मैथियन गैस के फटने से हुआ, जिसके नतीजे में अब तक 51 अफराद की हलाकत और 20 के ज़ख्मी होने की तस्दीक हो चुकी है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक धमाके के वक्त कोयले की कान के उन 2 ब्लॉक्स में 70 अफराद मौजूद थे। लेबनानी हिजबुल्लाह ने हीफा के जुनूब मशरिक़ में वाक़े रामात में मिज़ाइलों से हमले की जिम्मेदारी कबूल करते हुए कहा कि ये लेबनान पर बार बार इसराइली हमलों का जवाब है। इत्तला दी गई है कि गुज़िश्ता रात से इतवार तक हिजबुल्लाह ने बालाई अल जलील और हीफा के जुनूब के तरफ 100 से ज़ायद मिसाइल दागे। दूसरी तरफ इसराइली फ़ौज ने कहा कि उसने लिबनानी सरजमीन से तकरीबन 10 रॉकेट लॉन्चों की निगरानी की और लिबनान की सरजमीन से दागे गए ज़्यादातर रॉकेटों को रोक दिया गया। लेबनान की वजारत सेहत ने ऐलान किया है कि जुमे के हमलों में हलाक होने वालों की तादाद 37 हो गई है और तकरीबन 70 ज़ख्मी हैं। गाज़ा पट्टी के मुख्तलिफ इलाक़ों में इसराइल हमलों में ख़वातीन और बच्चों समेत 43 फ़लस्तीनी जाँ बहक हो गए हैं। इसराइली बमबारी के नतीजे में रौफ़े शहर में अद्वियात के गोदाम को निशाना बनाया गया, जिसके नतीजे में वजारत सेहत के 4 एहलकार हलाक हुए। दूसरी जानिब फ़लस्तीनी वज़ीर सेहत माजिद अबू रमदान ने बताया है कि 7 अक्टूबर से गाज़ा पट्टी पर इसराइल के हमलों में हलाक होने वाले तिब्बी एहलकारों की तादाद 1000 से तजावुज़ कर गई है। इसी दौरान उर्दन ने अपने शहरियों से मुतालबा किया है कि वो लिबनान छोड़ दें और इस मुल्क का सफ़र ना करें। बयान में कहा गया है कि लिबनान पर इसराइल के हमलों की वजह से उर्दनी शहरियों से लिबनान का सफ़र ना करने का मुतालबा दोहराया गया है। बयान में लिबनान में उर्दनी शहरियों से भी कहा गया है कि वो जल्द से जल्द इस मुल्क से निकल जाएं। गाज़ा में इसराइली फ़ौज के पनाह गज़ीन स्कूल पर हमले के नतीजे में मज़ीद 22 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। फ़लस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक हफ्ते को गाज़ा में अज़-ज़ैतून के इलाके में पनाह गज़ीन स्कूल पर इसराइली फ़िज़ाई हमले में कम अज़ कम 22 अफराद शहीद हुए, जिनमें ज़्यादातर ख़वातीन और बच्चे शामिल हैं। वजारत सेहत ने बताया है कि 7 अक्टूबर से जारी जंग के दौरान ये एक स्कूल बंद कर दिया गया था, जिसके बाद यहाँ बेघर अफराद ने पनाह ली थी। दूसरी जानिब इसराइल डिफेंस फोर्स ने अपने बयान में कहा कि उसने गाज़ा में हमास के एक कमांडर सेंटर को निशाना बनाया, जिसे अस्करियत पसंद ग्रुप दहशतगर्दाना हमलों की मनसूबाबंदी के लिए इस्तेमाल कर रहा था। वहीं हमास ने स्कूलों और दीगर शहरी मकामात को फ़ौजी मकासद के लिए इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया। अमरीकी रियासत अलाबामा के शहर बर्मिंघम में रात गए फायरिंग का वाक़या पेश आया, जिसके नतीजे में 4 अफराद हलाक और दर्जनों ज़ख्मी हो गए। खबर के मुताबिक हलाक होने वालों में 2 मर्द और 2 ख़वातीन शामिल हैं, जिनमें से 3 अफराद ने मौके पर ही दम तोड़ दिया था। अलाबामा पुलिस के अफसर ने मुकामी मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमलावरों की तादाद 1 से ज़ायद थी। पुलिस वाक़े की तहक़ीक़ात कर रही है, मगर अब तक इस हवाले से कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आ सकी। श्रीलंका में 2022 के बदतरीन मुआशी बहरान के बाद पहली सदारत इंतखाबात के लिए पोलिंग मुकम्मल हो गई, जिसके बाद वोटों की गिनती जारी है। इलेक्शन के दौरान सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए फ़ौज समेत 63,000 से ज़ायद पुलिस एहलकार तैनात किए गए थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक वोटिंग का अमल मुकम्मल होने के बाद श्रीलंका में 8 घंटों के लिए कर्फ्यू नाफिज किया गया, ताकि वोटों की गिनती के दौरान अमन व अमान की सूरत हाल कायम रहे। वादे रहे कि सदारती इंतखाबात के लिए 38 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें सदर रानिल विक्रमासिंघे, अपोजिशन रहनुमा साजिद प्रेमदासा और बाएं बाजू के रहनुमा अनवर कुमारा
سانکے کے درمیان سخت مقابلہ متوقع ہے۔ ووٹنگ کا عمل مکمل ہونے کے بعد ووٹوں کی گنتی جاری ہے۔ اور آخر میں سرخیوں پر ایک اور نظر۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے صدارت انتخابات سے قبل کملا ہیرس کے ساتھ ایک اور مباحثے کے چیلنج کو کر دیا مسترد۔ امریکہ کی 3 ریاستوں میں قبل از وقت رائے دہی کا بھی آغاز۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے امریکہ کی قیادت میں 6ٹی کوواڈ چوٹی کانفرنس میں کی شرکت۔ آسٹریلیا، ہندوستان، جاپان اور امریکہ کا اتحاد انسانیت کی بقا کے لیے انتہائی اہم دیا قرار۔ ایران میں کوئلے کی کان میں دھماکہ، 51 کارکن ہلاک اور متعدد زخمی۔ غازہ میں اسرائیلی فوج کا پناہ گزین اسکول پر حملہ، بچوں سمیت 22 فلسطینی شہید۔ آج بھی اسرائیل نے کیے حملے، شہداء کی تعداد 42,000 سے بھی زیادہ۔ لبنان میں حزب اللہ اور اسرائیل کے درمیان جھڑپوں کا سلسلہ جاری، لبنان میں ہلاکتوں میں بے پناہ اضافہ۔ امریکی ریاست الاباما کے شہر برمنگھم میں فائرنگ کا واقعہ، 4 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی۔ اور سری لنکا میں 2022 کے بدترین معاشی بحران کے بعد پہلے صدارتی انتخابات کے لیے پولنگ مکمل، ووٹوں کی گنتی جاری۔ ناظرین، سیاست ٹی وی کے عالمی خبرنامے میں بس اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے آپ بنے رہیے سیاست ٹی وی کے ساتھ۔ فی الحال مجھے دیں اجازت، خدا حافظ۔